So in this tutorial, we will be going to understand the concept of a data structures. Okay. So now let's first understand what exactly a data structure is. अगर आपसे कोई पूछे what is a data structure? So first of all, let's understand this. A data structure is a way of collecting and organizing data in such a way so that various operation can be performed on it easily. Operations like, let's say, if you want to insert, if you want to perform a deletion operation, removal, updations, these are all known as operations. So it is a way of collecting and organizing data in such a way so that you can perform those operations on it easily. Let's say you can perform a delete operation on your data, a removal operation, updation. So this concept is called as a data structure. So basically we have different types of a data structure. The first type of data structure we have is a primitive data structure. अभी primitive data structures कौन से होते हैं? Anything that can store data can be called as a data structure. So आपको पता है कि integer भी एक value hold कर सकता है, integer type की, float एक float type की value hold कर सकता है. So anything that can store data can be called as a data structure. Hence integer, float, boolean, char, etc. all are these data structures. But they are known as a primitive data structures. आप इन सब data structure क्या बोलोगे? A primitive one. The next we have is a complex data structures which are used to store large and connected data, and we call that data structure as an abstract data structure. जो आपका section 1 है. Okay, so abstract data structure actually comprises of your arrays, linked list, trees, graphs, stack queue, and etc. So this will be called as our abstract data type. So the first abstract data type which we are going to have a look on is arrays. Okay, so first of all we are going to understand our topic, arrays. So what do you mean by an array? Collection of a data of a similar data type. So array की simple definition ये that it is a collection of a data but of similar data type. अगर आपने एक array integer type का बनाया तो it is going to hold an integer value only. अगर आपने float का बनाया तो it is going to hold a float value only. So in programming, one of the frequently arising problem is to handle numerous data of same type. Consider a situation where you are taking a survey of 100 people and you have to store their ages. आपको 100 people's की age आपको store करानी है. So in order to solve this problem in C++, what we can do is we can create an integer array having 100 elements. अगर let's say आप यहाँ पर arrays का concept follow ना करो, तो आप किसके अकॉर्डिंग मतलब लेट्स से क्या सिनेरियो यूज करोगे इन ऑर्डर टू सेव दिस 100 पीपल्स एजेस? आप यहाँ पर कुछ है ना वेरिएबल्स बना लोगे, इंटीजर ए, लेट्स से आपने एक वेरिएबल बना दिया एज 1. ये आप इंटीजर कब तक बनाओगे? अंटिल एज 100. बट इन ऑर्डर with the help of this and arrays, what we can do is we can create a collection of these ages. So an array is a collection of a data that holds a fixed number of values of same type. तो ये ध्यान में रखना, of same type. For example, let's say for example आपने यहाँ पर एक array बनाया integer type का, आपने array का नाम दिया age और उसका अपने size का दे दिया let's say 100. So here the age array can hold maximum of 100 elements of integer type. So either you can make a use of this scenario कि आपको 100 variables declare कर दो, or what you can do is you can make a use of this simple line arrays. Okay. So the size and type of an array cannot be changed after its declaration. जैसे आपने यहाँ पर एज का पूरा प्रोग्राम बना दिया, अब आपने यहाँ पर चेंज कर दिया इसका साइज लेट्स से 99, बट अभी आपका जो कोड लॉजिक है वो आप 100 तक का लगा चुके, तो ऐसा नहीं होगा. द साइज एंड टाइप ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन. अगर आप चेंज करते हुए तो आपको पूरे प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे. जहाँ पर भी आप एरेस का यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर एज 100 ही कर दिया. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डिक्लेयर एन एरे इन C++. आप एरे एग्जैक्टली डिक्लेयर किस तरीके कर मतलब कर सकते हो C++ के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप. डेटा टाइप्स लेट्स से इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है या डबल है. देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर एरे. अगर आप इसको विदाउट दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ डिक्लेयर कर दो तो ये कि नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा, ना कि एक एरे वेरिएबल. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट इट एन एरे वेरिएबल यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स. आप इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करोगे. सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे इन C++. ओके. सो लेट्स से एरे का जो भी इंडेक्स होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, नॉट विद द 1. सो लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो. एरे का जो इंडेक्स मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, ना कि 1 से.
इस एरे के इंडेक्स को इंडाइसिस भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं. सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ साइज 5. तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 5 ही है, बट इनका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम 0 अप टिल 4. सो लेट्स से यहाँ पर आपने क्या ना एरे बनाया मार्क्स के नाम से, मार्क्स 5 करके आपने एक एरे बनाया. तो एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम 0 इंडेक्स. ठीक है. अब लेट्स से मैंने आपको बोला कि आप है ना मार्क्स 0 की आपको वैल्यू बतानी है, तो आप 19 लिखोगे. और लेट्स से मैंने बोला कि मार्क्स 2 की वैल्यू दिखानी, तो अभी 10 पास नहीं करोगे, आप क्या पास करोगे? 8. तो यहाँ पर 0 मैटर करता है एरेज में. So now you can see that in this example mark 0 is the first element of my array. Mark 0 is the first element of my array. If the size of an array is n, let's say आपने एक array का size लिया, suppose करो आपने 34 size लिया of your array. Consider it as a value of n. So let's say if the size of array is n, to access the last element, n minus 1 index is used. अगर आपको उसका लास्ट एलिमेंट फैच करना होगा तो अब आपको मैंने क्या बोला? n minus 1. सो n minus 1 क्या हो गया? लेट्स से n मेरा क्या है यहाँ पर? 34 minus 1. सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम 0 to 33. अगर आपने एरे का साइज क्या लिया? 34. सो हियर यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर मार्क्स तो लिया मतलब 5, बट इसका लास्ट इंडेक्स कौन सा? मार्क्स ऑफ 4. 5 minus 1, 4. Suppose the starting address of marks is 2120D. Suppose करो कि let's say ये जो marks का starting address है वो क्या है? 2120D. Then the next address of A1 will be the 2124D. The address of 2 will be 21228D. So you can see that यहाँ पर क्या था? 20. तो इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? 4 बाइट्स. इंटीजर की जो साइज होता है वो क्या होता है? 4 बाइट. तो पहले वाले ने आपका कितना लिया? 20. सेकंड वाले एलिमेंट में प्लस 4 वैल्यू आई, एड्रेस क्या हुई? 24. फिर एक और नेक्स्ट इंडेक्स में प्लस 4 वैल्यू हुई 28. ओके, सो दिस इज द एड्रेसिंग ऑफ योर एरेज. एरे के इंटीजर का साइज क्या होता है? आपका 4 बाइट्स. ओके, इट इज बिकॉज द साइज ऑफ अ फ्लोट इज अ 4 बाइट्स. नेक्स्ट अगर इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, इनका साइज क्या होता है? आपका 4 बाइट्स होता है. ओके, so now let's understand how you can initialize an array in C++ programming. So basically we have two types of an array. एक होता है हमारे पास वन डायमेंशनल एरे और एक और होता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे. 1D एरे के बारे में हम बात करेंगे. सो इन ऑर्डर टू डिक्लेयर एन एरे इन C++ प्रोग्रामिंग, so let's say I'm creating a project. So let's say I'm going to make a use of my code block IDE in order to work with C++ programming. So let's say click on this file menu, click on new, and you have to select a project. You have to create a project first. I'm going to select this console application if you want to work with C or C++. Click on go, and let me just click on next. In which programming language you want to work? Let's say मैंने यहाँ पर select कर लिया C++. इसके बाद मैंने किया next. So it is going to ask me the project title. तो let's say मैंने अपने project title का नाम दे दिया array 1. Example. Okay. Let's say this is going to specify the workspace. कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है अभी कहाँ पर जाके सेव होगा? तो ये मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? मैंने D डायरेक्टरी में डायरेक्टरी बनाई हुई है. Within this D directory, I have a folder called as code block project. This is going to be the extension of my file array1 example.cbp. Okay. और ये इसका रिजल्टिंग फाइल नेम आएगा, मतलब इसी प्रोजेक्ट में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा आपको. So you have to simply click on this next and click finish. So now you can see on the left hand side a project has been created for you. So you have to expand this sources and you will get a main.cpp file. Okay, CPP is the extension of your C++ files. So in order to increase its size, what you can do is press Ctrl and mouse wheel up. This is the size of the increase. So now let's understand how we can declare an array. Let's say मैंने आपको बोला कि आपको एक array बनाना है और array का मैंने बोला कि डेटा टाइप आपको रखना है इंटीजर. तो आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया. देन मैंने बोला कि एरे का नाम होगा मेरा मार्क्स. लेट्स से मेरे को पता है कि मेरे को इस मार्क्स के अंदर में कितने एलिमेंट्स डलवाने हैं, मेरे को पता है कि कितने सेट ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास हैं. तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ करली ब्रेसेस और यहाँ पर आप एलिमेंट्स इंसर्ट करा दो. लेट्स से आपने करा दिया कि एलिमेंट 1, 20, 30, 40 एंड 50 एंड लेट्स से 60.
तो ये कितने एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर इंसर्ट कराए हैं? 1 2 3 4 5 6. So here I did not need to specify the size of my array. तो मेरा कंपाइलर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड रिकॉग्नाइज करेगा कि यूजर के एरे का साइज क्या रहेगा. अंडरस्टैंड? सो लेट्स से अब यहाँ पर लेट्स से मैंने आपको बोला कि ये ना मार्क्स के 0th वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है. तो मैंने आपको बताया था कि एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 पे. अब 0 पे वैल्यू कौन सी है मेरी? 10. So in C++ you can make a use of a cout statement. Cout stands for console output. Console output का तब यूज करोगे when you want to display some content on your output window. Let's say मैंने यहाँ पर यूज कर लिया डबल कोट्स. डबल कोट से मैंने लेट्स से लिख दिया marks 0 is equal to, and here I am going to specify my value. So in order to concatenate it, we can make a use of this operator. और लेट्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ marks which is the name of my array, और within this square brackets I am going to specify my 0 index. And you can make a use of this end line statement ताकि अब एक नई लाइन में आ जाए. So let's say मैंने इसको किया save, and let me just execute this. In order to execute this program, you have to click on this button. तो ये आपका प्रोग्राम बिल्ड भी कर देगा और रन भी कर देगा. इससे पहले अगर आपने टर्बो सी में वर्क किया हो तो आप पहले करते थे Alt F9 और फिर करते थे Control F9. तो Alt F9 से सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हो? कंपाइल करते हो. उसके बाद हम आउटपुट देखते हैं Control F9 से. So let's say I am just clicking on this button. So you can see. So mark 0 की इसमें वैल्यू मेरे को दे दी है 10. अब लेट्स से मैंने आपको बोला कि सेकंड वैल्यू प्रिंट करनी है. तो सेकंड वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर गोइंग टू चेंज दिस मार्क्स 1. तो लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया मार्क्स 1. सो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको लेट्स से एग्जीक्यूट करता हूँ. सो नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 20. बट अब लेट्स से मैंने आपको बोला कि आपको इंडेक्स 3rd की वैल्यू प्रिंट करनी है. इंडेक्स 3rd की, मैंने वैल्यू 3rd नहीं बोला, मैंने बोला इंडेक्स 3rd की वैल्यू प्रिंट करनी है. सो यू कैन मेक अ यूज ऑफ हियर इंडेक्स 3rd. और लेट्स से मैंने आपको बोल दिया यहाँ पर आप इंडेक्स ही पास कर दो 3rd. मैंने इसको किया सेव और एग्जीक्यूट. सो 3rd वैल्यू देखते हैं हमारे पास कौन सी है अभी. 30 की 40. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस इंडेक्स एंड द वैल्यू. नाउ लेट्स से अगर मैंने आपको बोला कि यार सारे ही मार्क्स प्रिंट करने हैं तो देयर आर 2 सिनेरियोस. या तो आप बार बार सी आउट लिखो कि लेट्स से आपने इसको कर लिया कॉपी, ओके, और लेट्स से यहाँ पर आपने इसको कर दिया पेस्ट. आपने यहाँ पर वैल्यू कर दी मार्क्स 0 की एंड मार्क्स 1 की. ओके, यहाँ पर मैंने इंडेक्स पास कर दिया मार्क्स 0 का और मार्क्स 1 का. ऐसे ऐसे करके ये आपको मार्क्स की स्टेटमेंट कितनी बार लिखनी पड़ेगी? अप टिल 6 टाइम्स. ओके, तो लेट्स से एक बार इसको मैं सेव करके देखता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो 0 की वैल्यू आ गई और 1 की वैल्यू आ गई. So instead of writing this again and again, what I can do is I can make a use of a for loop. मैं यहाँ पर किसका यूज कर सकता हूँ? For loop. So we are going to make a use of for loop in order to print the elements of my array. और मेरे array के elements exactly हैं क्या? ये. So let me just make a use of for loop. So for is a reserved keyword in your C++ library. For में सबसे पहले हमको स्पेसिफाई करनी पड़ती है इनिशियलाइजेशन. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया i का और एरे का इंडेक्स मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. तो मैंने i की वैल्यू भी क्या स्पेसिफाई कर दी? 0. इसके बाद मैंने कंडीशन दे दी कि i लेस देन. अब यहाँ पर आप काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. सो लेट्स से मैंने यहाँ पर दे दिया लेस देन 6 एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i++. तो आपको फॉर लूप की वर्किंग पता है किस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है? सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन पे जाता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो वैल्यू इंक्रीमेंट करता है. सो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू राइट अ यूज ऑफ दिस सी आउट. मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, मैंने स्पेस दिया, इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर लेट्स से मैंने इसको कंकैटिनेट किससे करा दिया? विद आई वैल्यू के साथ. ओके, तो ये स्टेटमेंट समझने की क्या कर देगी? मार्क्स यहाँ तक ये प्रिंट कर देगा कंसोल, यहाँ पर आई की वैल्यू और यहाँ पर ये फिर बंद कर देगा और इज इक्वल टू करके वैल्यू आपकी दिखा देगा. सो नाउ हियर आई वांट टू फेच द वैल्यू ऑफ माय मार्क्स और यहाँ पे पास कर दूंगा आई, क्योंकि i की वैल्यू फॉर लूप इंक्रीमेंट करता रहेगा. तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 सारी आ जाएंगी. सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सर इस वाले में इसकी वो पता है 6 तक वैल्यू है
जहाँ पे वैल्यूज हमें करना हो और बहुत ज़्यादा हो तो उसमें फिर एक नया वेरिएबल बना के उसको फिर आई की कंडीशन में डाल सकते हैं। हाँ, उसको फिर आप आई की कंडीशन में डाल सकते हो। लेट्स से अगर आपको यूजर से पूछना है कि आप एरे का साइज क्या रखना चाहते हो, सो लेट्स से अभी इसने कुछ इस तरीके से प्रिंट कर दिया। सो लेट मी जस्ट मेक अ यूजर एंड लाइन स्टेटमेंट सो दैट नई लाइन में ही आ जाए। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट। So let's say mark 0 की वैल्यू आ गई 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. So this is the concept of your one dimensional array. अब let's say मैंने आपको बोला that you have to calculate the sum of all these digits. एक कॉमन क्वेश्चन आता है you have to find और let's say you have to calculate the sum of an array कि जितने भी array के एलिमेंट्स हैं आप उनका सम करके दिखाओ। So वो भी प्रोग्राम बहुत आसान है। So let me just execute that program as well. So here first of all I'm going to make a use of a variable called as integer. एक मैंने सम ले लिया और उसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया 0 के साथ ताकि इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू ना आए। इंस्टेड ऑफ दिस मार्क्स ऑफ आई व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज लेट्स से इसको अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ तो कमेंट के लिए आप ये यूज कर सकते हो डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर दिख रहा है थोड़ी ज़्यादा इसने लाइट स्टेटमेंट कर दी, तो अगर इसको बोल्ड करना और कमेंट में रखना यू कैन मेक अ यूज ऑफ थर्ड वन। लेट्स से यहाँ पे भी कमेंट ही है बट थोड़ा लाइट इसने ज़्यादा ही कर दिया, यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट ताकि ये थोड़ा बोल्ड में नजर आए। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू हियर इज लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया सम और यहाँ पे मैंने क्या किया सम प्लस आई। अब सम के अंदर क्या आ जाएगी आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी, बट आई की वैल्यू भी किसकी आई की वैल्यू, हियर आई कैन मेक अ यूज ऑफ माई मार्क्स ऑफ आई। तो अभी मेरा सम क्या है 0 है, तो 0 प्लस मार्क्स ऑफ आई क्या हो जाएगा 10, तो 0 प्लस 10 10। तो अब मेरे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब मेरा लूप दोबारा इटरेट होगा सम प्लस मार्क्स प्लस आई, तो मार्क्स की आई की होगी 10। हाँ, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, फिर 30 प्लस 30 इस तरीके से वर्क करते हैं। फाइनली व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सी आउट स्टेटमेंट। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम। लेट्स से मैं इसको थोड़ा बाहर लिख देता हूँ वरना ये ना लूप के अंदर बार बार सम की वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। सो आउटसाइड द लूप आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सी आउट स्टेटमेंट। यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस स्लैश एन एज वेल ताकि एक नई लाइन में आपके पास आ जाए आउटपुट। सो मैं लिख देता हूँ सम of an array is और let's say इसको मैंने concatenate करा दिया with my value sum and I'm going to make a use of this end line statement. So simply click on save and execute this program. स्लैश एन में होगा कि वरना अगर स्लैश एन लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ था sum of an array, तो स्लैश एन एक नई लाइन का स्पेस दे दिया बस आपको और कुछ नहीं किया। So let's say sum of an array is 210. लूप के अंदर आप लिखोगे तो बार बार रिपीट होगी। सो लेट्स से इसको मैंने कंट्रोल सी कर लिया, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ एंड विद इन दिस फॉर लूप आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस वैल्यू। इसको मैंने किया सेव और एग्जीक्यूट। सम ऑफ एन एरे 10 30 60 100, तो बार बार जितने टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट होगा उतने टाइम आपकी ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट होगी। सब मैंने इसको कहाँ लिखा है आउटसाइड माई लूप। सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस प्रोग्राम। तो यहाँ से मैं ये स्टेटमेंट हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर दूँ। तो आपको समझ में आ गया कि आप 1D एरे को पॉपुलेट किस तरीके से कर सकते हो। अब लेट्स से यहाँ पर तो ये 1D एरे वो है जिसके पास है ना सेट ऑफ वैल्यूज ऑलरेडी है। अब अगर आपको ना यूजर से वैल्यू लेनी हो अपने एरेज की तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि मेरे को तो वैल्यूज पता थी तो मैंने यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। बट लेट्स से अगर आपको यूजर से वैल्यू लेनी हो तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसको लेट्स से सेव करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट फाइल न्यू। वी हैव टू सेलेक्ट दिस कंसोल एप्लीकेशन। उसके बाद C++ में सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्रोजेक्ट टाइटल में देता हूँ एरेज 2। सो इस सारे प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक अ वैल्यू फ्रॉम अ यूजर। लेट्स से यूजर मेरे एरे की वैल्यूज पॉपुलेट करेंगे। सो लेट्स से सबसे पहले ना मैं ये ना वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर n करके।
और यहाँ पर मैं सी आउट में एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट स्लैश एन। मैं यूजर से पूछता हूँ कि एंटर द साइज ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर यूजर से प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर द साइज ऑफ एन एरे। सो इन ऑर्डर टू टेक एन इनपुट फ्रॉम अ यूजर इन C++ वी हैव टू मेक अ यूजर द सीन स्टेटमेंट कंसोल इनपुट। और इसके लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैंने यूज कर लिया n। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू डिक्लेयर माय एरे। मैंने इंटीजर का साइज लिया। द नेम ऑफ माय एरे लेट्स से मैंने ले लिया ARR। दिस इज द नेम ऑफ माय एरे, कुछ भी आप नेम ले सकते हो एरे का। और यहाँ पर इसका स्पेसिफाई मैंने साइज कर दिया n। तो अब मेरा एरे इतना बनेगा जितना यूजर इसका साइज डालेगा। ओके, सो लेट्स से द नेक्स्ट स्टेप इज टू, अब मैं यहाँ पर एक और सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ and I'm going to make a user slash n. Let's say enter the elements of an array. तो अब यूजर पॉपुलेट कराएगा कि यूजर को क्या क्या एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए। So here again I'm going to make a use of my for loop. तो for loop मैं चलाता हूँ। let's say for मैंने चलाया integer I is equal to 0। अब मैं I कब तक चलाऊंगा? less than n तक। And then I plus plus. Okay. Here I am going to make a use of my cout statement, so that यहाँ पर मैं एक statement लिख दूँ enter element, और let's say इसको मैं concatenate करा देता हूँ with my value I। तो यहाँ पर यूजर से पूछ लेगा enter element 1 2 3 4 हो गया। let's say इसको मैंने concatenate करा दिया इसके और इस साइन के साथ। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखनी है। जो एक्जैक्टली मेरी वैल्यू लेगा वो कौन लेगा? मेरा सीन लेगा। तो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सीन। अब सीन में मैं पास कर दूंगा एरे का ith इंडेक्स। ओके, सो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ हियर एंड लाइन एज वेल, ताकि एक नई लाइन का स्पेस आ जाए। तो अभी इस प्रोग्राम को फिलहाल रन करके देखते हैं कि अभी कितना मेरा प्रोग्राम बना है। सो एंटर द साइज ऑफ एन एरे। मैंने लेट्स से साइज ले लिया 4। तो मेरे को इसको कितने एलिमेंट्स पूछने चाहिए? 0 1 2 3। सो यहाँ पर पूछेगा एंटर एलिमेंट 0। मैंने डाल दिया लेट्स से 1 2 3 4। इसमें उतने ही सारे पूछे, आगे नहीं बढ़ा। सो लेट्स से आपको समझ में कि आप यूजर से वैल्यू किस तरीके से लोगे। एंड लेट्स से वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस एरे। तो यहाँ पे मैं एक और एंड लाइन स्टेटमेंट देता हूँ। सो जस्ट सिंपली कॉपी दिस फॉर लूप in order to display the value of array elements. Just paste it over here, and instead of this scene, what you can do is you can simply type here cout, and let's say मैं यहाँ पे दिखाता हूँ element, and here what exactly I'm going to do is यहाँ पर मैं पास करता हूँ अपना array का I, क्योंकि अब मेरा array populate हो चुका है। तो ये इसका 0 इंडेक्स भी दिखा देगा, फर्स्ट इंडेक्स भी दिखा देगा। So let me just make a use of a statement over here cout slash n elements are। एक और मैं एंड लाइन की स्टेटमेंट ले लूँ दिस वन। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड रन दिस प्रोग्राम। एंटर द साइज ऑफ एन एरे। मैंने यहाँ पे साइज ले लिया एरे का 4। तो एंटर एलिमेंट 0 1 2 3 4। तो एलिमेंट्स आर, वो मैंने यहाँ पर एंड का स्टेटमेंट नहीं दिया, बना दिखा दिया। सो लेट्स से तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसको थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। लेट्स से व्हाट एक्जैक्टली वी वांट इन दिस प्रोग्राम इज आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम माय एरे। ये सिंपल प्रोग्राम तो आप कर ही लोगे, बट डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। इन दिस प्रोग्राम वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। मतलब लेट्स से मैंने इसको एक बार सेव किया और एग्जीक्यूट किया। तो यूजर से सबसे पहले मैंने अपने एरे का साइज पूछ लिया। एंटर द साइज ऑफ एन एरे, लेट्स से 5 डाल दिया। इसके अंदर मैंने पहला इंसर्ट डाला एलिमेंट 12, फिर मैंने डलवाया 18, फिर लेट्स से मैंने डलवाया 21, फिर मैंने डलवाया 4, एंड लेट्स से फिर मैंने डलवाया 2। सो यू कैन सी दैट द मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस एरे वी हैव इज 21 है, एंड द मिनिमम एलिमेंट वी हैव इन दिस एरे इज 2। So let's implement this logic. How you can find a minimum element and a maximum element from an array. जो common questions वगैरह रहते हैं. So let's say in order to find the minimum and a maximum element in an array, what exactly I'm going to do is, यहाँ पर मैं एक है ना size ले लेता हूँ. Let's say enter the size of an element. Okay.
here I am going to make a use of a variable. एक मैंने लेट से बना लिया ग्रेटेस्ट के नाम से, और एक और मैंने वेरिएबल बना लिया लेट से स्मॉलेस्ट के नाम से। तो एरे अपने एलिमेंट्स को ना इंडेक्स के बेस पे स्टोर करता है, और एरेस की एक और डेफिनेशन होती है फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियल और अ कंटीग्युअस मेमोरी लोकेशन। मतलब कंटिन्यूएशन में सेव करता है, पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। ऐसा नहीं कि अरे पहले 1 पे कर देगा फिर 0 पे कर देगा, नहीं। इट इज गोइंग टू स्टोर योर एलिमेंट इन अ कंटिन्यूएशन। सो लेट्स से, तो यहाँ पर मेरे को जब यूजर्स से एरे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, बट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज मैं इस ग्रेटेस्ट वाले वेरिएबल को इनिशियलाइज करा देता हूँ मेरे एरे के 0th इंडेक्स के साथ। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर करके आ रहा हूँ, ग्रेटेस्ट के अंदर मेरे एरे का 0 जो भी पहले एलिमेंट गया होगा उसकी वैल्यू इस ग्रेटेस्ट में आ जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्मॉलेस्ट के साथ भी यही किया, स्मॉलेस्ट को ही मैंने एरे के 0 से भी इनिशियलाइज करा दिया। अब सपोज करो यूजर ने एरे के 0 इंडेक्स में वैल्यू डाली है 20, तो ग्रेटेस्ट वाले वेरिएबल में हमेशा वैल्यू आपकी यहाँ से इसके पास जाती है। तो स्मॉलेस्ट के पास भी अभी क्या चलेगी मेरी वैल्यू 20, और ग्रेटेस्ट के पास भी मेरी वैल्यू क्या चलेगी अभी 20। लेट सपोज करो मैंने 20 डलवा दिया, सपोज लेके चल रहे हैं 20 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे। तो अभी मेरे ग्रेटेस्ट के पास भी कौन सी वैल्यू आ गई है 20, और स्मॉलेस्ट के पास भी आ गई है 20। So let's say here what exactly I'm going to do is, ये तो सारा मेरा array element print ही करा रहा है। I'm going to write here a statement, let's say, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लॉजिक implement कर देता हूँ। So here what exactly I'm going to do is I'm going to make a use of my for loop. Okay, इसको मैंने कब तक चलाया I less than n and I plus plus. Okay. In this for loop, I am going to make a use of my if statement. तो मैंने यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यूज करी, if statement। तो मैंने यहाँ पे if लिखा, अब मैंने चेक किया लेट्स से अगर मेरा ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन है किससे, आपके लेट्स से एरे का नाम के लिए मैंने एरे ऑफ आयत के, तो लेट्स से मैंने क्या चेक किया, अगर मेरा ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन है ARR ऑफ आई के साथ। सो लेट्स इक्वल टू तब डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि अगर सेम वैल्यूज हैं तो अभी तो फिर वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट। तो सपोज करते हैं कि लेट्स से यूजर ने पहला एलिमेंट डलवाया 20, इसके बाद एलिमेंट डलवाया 18, इसके बाद डलवाया 21, और इसका डलवाया 6 एंड देन फाइनली 2, एंड फिर लेट्स से डलवा दिया एलिमेंट रैंडमली 14। तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इज मैक्सिमम इज 21 एंड द मिनिमम इज 2। तो यहाँ पर अभी आपका लूप चलेगा 0 के साथ। तो इसमें चेक किया ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है, अगर यहाँ पर आप इज इक्वल टू नहीं लगाओगे तो ये इफ की कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, इफ अपने पार्ट में एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, इफ क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा और बाहर वाले नहीं ऊपर जो ग्रेटेस्ट लिखा था वो क्या लिखा था, वो तो वेरिएबल का नेम लिया है, और उसके अंदर अभी क्या डलवा दी मैंने एरे के फर्स्ट वाली वैल्यू डलवा दी। अभी क्या कर मतलब इसका मतलब ये ना एरे 0 का, हाँ एरे 0 का पहला इंडेक्स आपने किसमें डलवा दी ग्रेटेस्ट में। यार आपको कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू चाहिए ना जिससे कंपेयर कराओगे, कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, आप अपनी रैंडमली तो कोई वैल्यू ले नहीं सकते, आपको एरे से कोई ना कोई वैल्यू उठानी है। तो मैंने एरे के 0 इंडेक्स से कोई वैल्यू उठानी। ये क्या सोचता है एरे 0 भी ग्रेटेस्ट है 0 भी स्मॉलेस्ट है, चलो अभी बताते हैं इस वाले लॉजिक को, आप समझो पहले एक बार। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर चेक किया अगर मेरा ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन है एरे ऑफ आई से, तो सपोज करो अभी मेरे पास ये बताओ कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट में वैल्यू क्या है 20 है, 20 ग्रेटर देन है 20 से, कंडीशन इसकी फॉल्स है। हाँ अगर लेस देन इक्वल टू होता या ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इसकी कंडीशन ट्रू थी, बट यहाँ पर इसकी कंडीशन है फॉल्स। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट ले ली, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉलेस्ट अगर मेरा लेस देन है ARR ऑफ आई के साथ। ओके, तो फाइनली मैंने क्या किया, लेट्स से एक और मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ले ली, ग्रेटेस्ट के अंदर मैं वो वैल्यू डलवा दूंगा ARR ऑफ आई की। यहाँ से समझने वाले सिनेरियो बहुत सिंपल है, और लेट्स से सेम सिनेरियो मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट के अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दी ARR ऑफ। अब ध्यान से देखो तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या सही है 20 ग्रेटर देन है 20 से, कंडीशन क्या है फॉल्स, क्योंकि इक्वल टू आपने यहाँ पर नहीं लगाया।
तो इफ अपनी कंडीशन तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसकी गिवन कंडीशन रहती है ट्रू, तो यहाँ पर फॉल्स होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट में भी क्या वैल्यू पड़ी हुई है 20, क्या 20 लेस देन 20 से नहीं है। तो अभी तक आपको ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू क्या रही है 20 ही रही है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी क्या रही है 20 रही है। अब लूप आइटरेट होगा, अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, अब लूप कहाँ पर आ जाएगा 18 पे। तो ये चेक करेगा कि 20 ग्रेटर देन है 18 से, ग्रेटर देन है 18 से, तो कंडीशन है ट्रू, ग्रेटेस्ट 20 हो जाएगा बट ग्रेटेस्ट 20 ही रहा। सो लेट्स से मैंने थोड़ा साइन एक बार गलत लिख दिया, तो ये लेस देन आएगा और यहाँ पर सॉरी ग्रेटर देन आएगा। ओके, सो लेट्स से कि 20 लेस देन है 18 से नहीं है, तो ये तब भी एग्जीक्यूट है, तो ग्रेटेस्ट अभी भी आपका क्या आएगा 20। अभी यहाँ पर आएगा क्या 20, लेट्स से स्मॉलेस्ट क्या है अब आपका 20 ग्रेटर देन है 18 से, कंडीशन है ट्रू, कंडीशन क्या होगी ट्रू, तो वो एआरआर ऑफ आई की वैल्यू, तो एआरआर ऑफ आई में वैल्यू क्या आ गई 18, वो अब किस में चली गई 18, तो अब 20 से हट के स्मॉलेस्ट क्या आ गया 18। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर आ गया आपका 18 वैल्यू, तो यू आर नाउ योर स्मॉलेस्ट इज बिकम 18 और ग्रेटेस्ट तो आपका 20 ही रहा, क्योंकि इसको तो अभी तक कोई छेड़ ही नहीं पाया। अब लेट्स से आगे बढ़ते हैं, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, थर्ड पे आ गई 0 1 2, अब यहाँ पर आया, अब इसे चेक किया, अब ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या 20 थी, बट एआरआर ऑफ आई, एआरआर ऑफ आई में हमारे पास वैल्यू क्या है क्या 20 लेस देन 21 से नहीं, इट इज नॉट लेस देन, इट इज ग्रेटर देन 21। तो अब मेरा ग्रेटेस्ट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कंडीशन होगी ट्रू, अब क्या पर आ जाएगा 21 इज विल बिकम द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से आपका लूप चलता रहेगा और फाइनली इस लूप के बाहर, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ दिस लूप व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने यहाँ पे सी आउट लिख दिया स्लैशन करके, लेट्स से मैंने लिख दिया लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू, और इसको मैंने कंकैटिनेट करा दिया विद ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ। ओके, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिख दी स्लैश एन मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे लेट्स से मैंने करा दी वैल्यू स्मॉलेस्ट। तो अब आपके लूप से स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकल के आ जाएगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। सो नाउ सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड लेट्स मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो एंटर द साइज ऑफ एरे, लेट्स से मैंने 5 ले लिया। चलो ये एलिमेंट्स में इंसर्ट कराया था, मैंने 20 डलवा दिया, ओके 18 डलवा दिया, 21 6 2 एंड लेट्स से चलो वो दिक्कत है, मैंने साइज का समझ लिया। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आगे 21 निकल गया और मिनिमम वैल्यू के आगे आपके पास 2 निकल गया। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन वर्क विद द वन डायमेंशनल एरेज। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर वन डायमेंशनल एरेज।